नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और यूएस और ईरान के बीच भले ही बातचीत की बातें सामने आ रही हैं, शायद पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने अपना समझौता ईरान को भेजा है, लेकिन दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला अभी भी जारी है, फिर चाहे वो जुबानी हो या फिर गोला बारूद से। नतीजा ये है कि कच्चे तेल में हमेशा लगातार हमने यहाँ पर $100 के ऊपर कारोबार बनता हुआ देखा है। शिप्स की आवाजाही यहां पर सीमित है। कारोबारी अब भी कंटेनर्स की दिक्कतों से जूझ रहे हैं एंड इन सब का असर भारत पे पड़ता हुआ नजर आया है, फिर चाहे वो खाने का तेल हो, दालें हो या फिर चीनी। इन सब के बीच कैसी है बाजार की स्थिति, आगे जाकर मॉनसून एंड लिन्यो का स्तर यहाँ पर किस तरह से हाल रह सकता है, और साथ ही साथ जिस तरह से रुपए में हमने जोरदार गिरावट देखी है पिछले एक साल में, करीबन 10 से 12% की गिरावट, इन सब का असर एग्रीकल्चर मार्केट्स पर कैसा है, आगे किस तरह के हालात हैं, क्या सुधार की उम्मीद है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस्मा के डीजी दीपक बलानी, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी एंड आईपीपीए के प्रेसिडेंट एंड इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सुधाकर जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्रॉस बोर्ड अगर हम यहाँ पर देखें और अक्रॉस कमोडिटीज भी अगर देखें, तो एक चीज जहाँ पर हमने इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज आता हुआ देखा है वो एब्सोल्युटली खाने के तेल हैं। एडिबल ऑयल प्राइस में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट पिछले एक साल में बनी है, पिछले 6 महीने में बनी है, बायोफ्यूल के मैंडेट्स जिस तरह से हैं, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी? सबसे पहले that's a lot of questions in one, Manisha ji. Yes, the war-related issues have really caused slight inflationary pressures, definitely driven by the Brent crude, which has gone up all the way from, as you know, $70 to touch $115. But right now it is stabilized somewhat, along with the developments in the Middle East to about 101 types. So we have seen that globally, not only earlier we used to speak that biofuel mandates globally will influence edible oil prices because they are about 25-30% of it. But there are new dynamics of it. We have realized that edible oil industry, we use nearly 15, 16 products, starting with laminates and TBHQ, the chemicals, the coal, the energy prices. So in all these things, we have found that they've gone up from 35 to nearly about 75-80%. But in the midst of it, the theme right now for oil industry is less about supply demand factors and in various oils, but more about the supply chain disruptions potentially because of this, and the demand being on the low key because of this. And the third point is basically in the Horeca and B2B segment, the demand due to all these high prices is slightly on the backseat. Now, the risk premium that have been associated with this will make this market very volatile. And once you, like you said, once we start seeing unlocking and some peace coming back up, you can see equally strong volatility according to these factors. So this is how the markets have been. But by and large, India is well covered, supported by the domestic mustard crop, the domestic soya carryouts within India, and there is absolutely no disruption for supplies of palm oil, soybean oil shipments. Sun oil shipments are also quite normalized at this point in time because they don't use the troubled Hormuz canal. So as far as India is concerned, the supply disruption is not a major factor. Prices have slightly gone up. We see demand destruction at the Horeca and B2B because there are definitely some gas availability issues prompting various sectors to innovate and see how edible oil consumption can be reduced temporarily. सुधाकर जी, जस्ट टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, अगर हम भाव ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से है, लेकिन डिमांड यहाँ पर डिक्लाइन भी है, क्या ये इस साल में है? काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा होरेका सेगमेंट ने बोला एलपीजी के प्रॉब्लम्स हैं, 10% का इम्पैक्ट यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्टर में आता हुआ देखा है, ये इंडस्ट्री खुद से यहाँ पर बताती है। डिमांड की बात अगर की जाए तो पिछले 2-3 साल में किस तरह के यहाँ पर ट्रेंड्स रहे हैं, और क्या हम इसी तरफ जा ही रहे थे जहाँ पर डिमांड प्लेटो हो रही है इंडियन मार्केट्स में? एक्चुअली डिमांड देखिए, आई वुड से डिमांड हैज बीन नॉर्मलाइज्ड कि 2% या 1.5%, 1.5% के हिसाब से जो डिमांड ग्रो होता है नॉर्मली वही हो रहा है। 4-5% से जो ग्रो किया था पहले वो नहीं हो रहा है आज के दिन में। सो डिमांड इज समवट सबड्यूड, बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर अस, I think thanks to the domestic crop
triggered, I would say, the better rapeseed crops over the last 2-3 years, better domestic crops. The imports have been curtailed more or less at about 16 million tons, whereas 3-4 years back, I remember it used to be about 17 million tons. So I think we have done a good job of controlling imports and also seen not really enough to make ourselves insulated from vulnerability, not really good enough. But domestic crops, especially rapeseed and soybean crops, have grown in India, adding to the supply situation. But demand, I would say that is normal at about 2% growth. जो कमोडिटी हम अपनी ज़रूरत का 60 से 65% इम्पोर्ट करते हैं सुधाकर जी, और जिस तरह से रुपए में हमने इतनी बड़ी डिप्रिसिएशन आते हुए देखी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। आप कहेंगे जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, काफ़ी हद तक ये सारा का सारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है? Yes, everything. Like I said, we use 16 products in edible oil making and TBHQ refining process. तो उस सबका थोड़ा बहुत inflationary pressure हुआ है. But if I really see, edible oil prices are somewhat stable. It's not gone up in the last few days. Actually, they are trying to get demand. If we see oil-wise, I think palm oil is comfortable, driven by B50. Biofuel margins are very good because the Brent crude oil prices have gone up. So it is keeping some kind of a hike in the palm oil prices. Otherwise, the palm production is comfortable. Stocks are comfortable. Soybean oil, on the other hand, is waiting for demand. India being the largest buyer from Argentina, shipments are regular. But what is affecting the prices right now is not exactly directly the supply chain issues, but the good biodiesel margins within US. That's why you will find that Chicago Board of Trade, which is representative of soybean complex, has been very volatile, and it has actually at peak gone up to 77 cents. So soybean oil requires demand, especially from India. Otherwise, you will find that the palm and soya gap, which is about $100, makes palm attractive right now. But as we go in the next 2-3 months, my belief is that soya also needs Indian demand. So both the oils will compete to find market share in Indian market. Sun oil is a different ball game. It goes directly into the household majorly in South India. So that is very less price elastic. But otherwise, the switch between palm and soya, when we talk about, today, palm oil continues to be the cheapest, and rapeseed is a good story, bright spot in the Indian market because the farmer is getting better price than MSP. Crushing has been much more than normal because of this disruption. And rapeseed oil, mustard seed oil prices are very, very competitive compared to imported soya. So they are fulfilling the consumption. So if the domestic oils like rice bran, mustard, groundnut, soya are finding demand, it is good news because indirectly that will add supportive to the domestic growth eventually. वो एक बेहतर पॉइंट है ऑफ कोर्स यहाँ पर कि काफ़ी सारे जो इंडिजिनस कमोडिटीज़ हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वहाँ से हमने यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखा है। ये तो बात हुई यहाँ पर खाने के तेलों की, लेकिन दालों पर एक नज़र डालेंगे। एंड विमल जी, अगर हम यहाँ पर भी पहले फ्रेट कंसर्न्स, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आती हैं, लेकिन लॉजिस्टिक कंसर्न्स, फ्रेट चार्जेस यहाँ पर ऊपर गए हैं क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया है, साथ ही साथ रुपए में गिरावट है। इन सब चीज़ों का दालों के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पे आप क्या असर देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, आपने जो शो पे आमंत्रित किया। देखिए, हमारे इस जो सिचुएशन है दालों में तेलों की तरह नहीं है। डेफिनेटली हमारा कॉस्ट बढ़ा है। आपने सही फरमाया कि जो फ्रेट पे जो है हमारा जो ओशन फ्रेट है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि एक तो ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, दूसरा वॉर प्रीमियम, जो वॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी बढ़ गया है। तो वो है, प्लस जो रुपी है वो उसमें काफी गिरावट आई है। जब वॉर के पहले रुपी 1991 था, जो भी घटकर 95 तक पहुंच गया है, तो उसकी भी हमारे पर काफी मार पड़ी है। लेकिन आपको बता दो, एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब होने के बावजूद ये जो मार है ये ट्रेड को पड़ी है, लेकिन भाव में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल से मैं देख रहा हूं कि जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है।
और वो मैं समझता हूँ कि ये जो असर है ये वार का असर है, क्योंकि वार की वजह से जो अभी आप अभी जो चर्चा हो रही थी कि एलपीजी नहीं मिल रहा है या एलपीजी की कमी है, तो जो होरेका सेक्टर है उनके यहाँ उन वहाँ से जो हमारी जो डिमांड आती है दालों की, वो डिमांड बहुत कम हो गई है। तो मैंने अपने लास्ट मेनी मेनी ईयर्स से मैंने ऐसे ही जो डिमांड अप्रैल के महीने में, नॉर्मली अप्रैल के महीने में डिमांड बहुत अच्छी रहती है, भाव भी अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार भाव भी काफी कम है, क्योंकि डिमांड बहुत कम है और माल का उठाव नहीं है। इसलिए 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 भाव में बहुत कमी आई है। भाव जो बढ़ने चाहिए थे, जिन जो भावों के जो कॉस्ट बढ़ा है, हमारा जो कॉस्ट बढ़ना चाहिए था उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भाव स्थिर है, भाव में कोई वृद्धि नहीं है, उल्टा भाव में अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी की वजह से उल्टे सामने से 150-2 रुपए की किलो की मंदी आ गई है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो येलो पीस जो 1.5 बिक रहा था, वो लगभग अभी 39.5 के भाव हो गए हैं पोर्ट के ऊपर। मसूर जो 61 रुपए तक बिक गई थी मार्च में, फरवरी मार्च में, वो अभी 58 रुपीज हो गई है। तो इनफैक्ट दालों के भाव कम हुए हैं। और तो एक अच्छी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में दालों की वजह से इन्फ्लेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दालों के भाव बहुत स्थिर हैं, दालों की सप्लाई बराबर जारी है, क्योंकि हमारे यहाँ फरवरी मार्च में बहुत सारे शिपमेंट्स के सौदे हुए थे, तो वो सारे माल अभी पहुंच रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी भी कोई इशू नहीं है। ओरिजिन्स में भी कोई प्रोडक्शन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हमारा जो जितना भी, जैसा आपने फरमाया कि हमारा जो इंपोर्ट होता है वो हमें हॉर्मोज सेक्टर से कोई इशू नहीं, हमें हॉर्मोज से कोई स्टेट हॉर्मोज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर इंपोर्ट होता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार और ईस्ट अफ्रीका से होता है, तो इसलिए हमें हमारा उसमें सप्लाई में कहीं भी इसमें डिसरप्शन नहीं है। ये कॉस्ट जरूर बढ़ गया है, तो मैं समझता हूँ कि एक बार अगर ये वॉर, जिस तरह वॉर के ये खत्म होने की बातें हो रही, अगर ये वॉर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ एक बार नॉर्मल सिचुएशन आएगी तो दालों में डिमांड आएगी। लेकिन मुझे दालों में कोई बहुत ज्यादा भाव में अभी सामने महीनों में कोई वृद्धि नहीं दिखती है। तो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह है कि खाने के तेलों में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। ऑफ कोर्स ओरिजिन कंट्रीज़ में यहाँ पर अच्छी खासी दालों का जो है प्रोडक्शन हमने वहाँ पर बनता हुआ देखा है, और भारतीय बाज़ारों में दालें एमएसपी के आसपास ही पूरा पिछला 1 साल कारोबार करती रही हैं। एक सेंस यहाँ पर चीनी की ले लेते हैं, एंड दीपक वलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, चीनी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एफआरपी इंक्रीज हम आता हुआ देख चुके हैं जो हर साल आता है। शुगर प्राइस इंक्रीज सालों से नहीं दिखा। एथेनॉल प्राइस रिवीजन अगेन कई सालों से यहाँ पर नहीं हुआ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर पुश कर रही है। एक्सपोर्ट्स को लेकर फिर यहाँ पर थोड़े से कंसर्न्स हैं कि जितना अलाउड हुआ है वो शायद नहीं होगा। इन सब के बीच में शुगर इंडस्ट्री अपने आप को कहाँ पाती है और किस तरह की प्रायोरिटीज आप देखते हैं, गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ी सी हमने गिरावट ही यहाँ पर शुगर के प्राइसेस में आते हुए देखी है? आप म्यूट पर हैं दीपक जी। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी योर प्रोग्राम। बिल्कुल, आपने जो एक पूरी तस्वीर दी है उससे तो लग रहा है कि इंडस्ट्री काफी चिंताजनक है क्योंकि कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, और फिर भी इतने बुरे हाल नहीं है। देखिए, एफआरपी इंक्रीज हो गए हैं, जो कि हर साल सीएससीपी के रिकमेंडेशन के बाद जो 10 रुपए सरकार ने बढ़ाया है पर क्विंटल, इसमें उसका स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एफआरपी बढ़ने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो चीनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एफआरपी 365 होने के बाद लगभग 42 और 43 रुपए के बीच में हो गया है। बट फिर भी अभी जो एवरेज एक्स मिल प्राइस है वो काफी कम है इससे। तो ये जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा कर देता है। उसके साथ ही साथ आपने बिल्कुल सही बोला कि लगभग 4 साल से अभी तक, जबकि एफआरपी जो है वो लगभग 20 से 22% बढ़ गई है, और इथेनॉल प्राइसेस में कोई मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि हमें बहुत आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि इस बार ये सीरियसली देखा जाएगा, क्योंकि इथेनॉल और शुगर मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मालूम है कि इथेनॉल एक शुगर स्टॉक को बैलेंस करने में एक बहुत अहम भूमिका लगाता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इथेनॉल प्राइसेस पे सरकार को अगले सीजन में सीरियसली सोचना पड़ेगा, नहीं तो एलोकेशन में भी और ऑफर्स में भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री दिक्कत में आती है
तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो किसानों को पेमेंट पे पड़ता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कहीं भी उसमें कोई दिक्कत आए या डिले आए। तो एमएसपी और इथेनॉल प्राइसेस, ये दोनों मुद्दे अभी भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, और हम लगातार सरकार से ये मांग करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि अगला सीजन शुरू होने से पहले इन दोनों मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए सरकार की तरफ से। दीपक जी, एक और चीज़ यहाँ पर है और वो ऑफ कोर्स इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है, जो कि एज ऑफ नाउ बी 20 ± 1 है, जो 21 बाजार मान के चल रहा है। लेकिन ये भी सुनने को मिला है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स यहाँ पर सरकार के साथ इन कॉन्वर्सेशन है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा के 25-27 शायद किया जाए। कहाँ तक वो बातचीत पहुंची है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बीआईएस को अपना स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, और बीआईएस इस वक्त 22-25 के ऊपर स्टैंडर्ड बना रहा है, और स्टैंडर्ड बनाने के बाद कहीं ना कहीं उसका ट्रायल होना आवश्यक है। तो एक प्रोसेस चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि सरकार 22, 25, 27 के ऊपर कैलिब्रेटेड वे में ब्लेंडिंग बढ़ाएगी। बट उससे बड़ी बात यह भी है कि सरकार E85 लाने का बहुत सीरियसली सोच रही है। उसमें काफी एक ट्रैक्शन आ रहा है, जिसमें कि डिस्कशंस हो रहे हैं कि कितने पंप्स लगाए जाएं, अभी E85 कहाँ पे डिस्पेंसिंग शुरू करेंगे, और उसके साथ ही जो OEMs हैं वो गाड़ी लॉन्च कब करेंगे। तो इसमें काफी मूवमेंट है, और अगर E85 का ये E100 का कुछ एक जो रोड मैप है अगर क्लियर होता है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एलोकेशन के हिसाब से काफी बड़ा एक हेल्प हो जाएगा हम लोगों को। एब्सोल्युटली, चाहे वो पॉलिसी चेंजेस की बात है या फिर ऑफ कोर्स किस तरह से सरकार यहाँ पर डील करेगी वेरियस चीज़ों पर, उस पर नजर रखने की बात है, जो तय करेंगे कि आगे जाकर काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाएं। पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो उनसे जानेंगे एक और चीज़ जहाँ पर इंडिया नजर रखेगा, और वो है मौसम। 30 साल में सबसे बुरा एल निनो यहाँ पर देखा जाएगा शायद, और बिलो नॉर्मल मॉनसून की बात यहाँ पर ऑलरेडी की जा रही है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आगे एग्रीकल्चर पे कैसा पड़ेगा, और सभी कमोडिटीज के आउटलुक आगे जाकर क्या हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। बात है जहां पर काफ़ी सारे बाजार फिलहाल उससे जूझ रहे हैं, और मॉनसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिहाज से, और सभी एजेंसीज ने, इंडियन और इंटरनेशनल ने बोला है कि इस बार एल निनो है, सुपर एल निनो है, मॉन्स्ट्रस एल निनो है, 30 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग एल निनो है, और सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून सीजन की बारिश यहाँ पर कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि जून जुलाई के आसपास एल निनो यहाँ पर डेवलप या सेटल होना शुरू हो जाएगा। रेन मेक्स केन, मिस्टर बलानी। बोलिए। मैं जहां तक देखिए एल निनो का सवाल है, तो हमने काफी स्टडी किया हुआ है, पिछले 10 साल का डेटा हमने लिया है, और इस बार जो मौसम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि एल निनो लगभग जून या जुलाई के बाद आएगा। अभी भी इंटेंसिटी काफी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा 2015 में हुआ था जब बहुत स्ट्रॉन्ग एल निनो आया था, और क्योंकि हमारा ग्रैंड ग्रोथ पीरियड मई जून जुलाई होता है, और अगर मान लीजिए एल निनो किक इन करता है जुलाई अगस्त में, तो हमें ये लग रहा है कि इस साल के फसल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि कुछ यील्ड पे फर्क पड़ सकता है। बट अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एल निनो आया, जिसको हम एक ओशियानिक इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो बहुत हाई रहा, तो इसका असर शायद अगले साल के फसल पे आएगा, क्योंकि जो प्लांटिंग होगी अगले साल, वो कितना रिजर्वायर में पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटक जो ज्यादा रेन फेड एरियाज हैं। तो इस साल अगर जून जुलाई के बाद आता है तो एक हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग एल निनो आया तो नेक्स्ट ईयर के क्रॉप में शायद ज्यादा फर्क पड़ सकता है। सुधाकर जी, काफी सारी रिपोर्ट्स ऑफ कोर्स इसके ऊपर निकल के आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वाटर टेबल्स डिप्लीट हो रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड खरीफ सोइंग में सॉइल मॉइस्चर शायद उतना नहीं है, और खरीफ के बाद शायद रबी में और भी नुकसान देखने को मिलेगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? I think El Nino is a very important factor. Like you said, 92% का long period average का prediction है IMD का, SkyMet का भी करीब 94 है। लेकिन एडिबल ऑयल इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसी 5-6 states are very important in India. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र, all the UP, all the oilseed growing areas. So we have to see not only the monsoon impact, but also the periodic progression till the harvest time. So that is one factor. Second thing is, since like you already said, the import dependency हमारा है,
तो ये क्या लानिनो impact in the past I have seen it will affect more the South Asian, that means palm production like Indonesia, especially Malaysia. It won't affect South American soybean complex or sunflower, for example. So within Asia, this impact is seen. We have to, of course, watch very carefully because monsoon is very important for Indian economy and its demand. अगर इंडिया में डिमांड कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस और मानसून और इंडिया स्टार्ट्स encouraging more imports, needs more imports, I think it will be a very crucial price factor for the global markets also, because India is such a large importer of all these things in India that everybody is watching monsoon. But so far, whatever we have discussed across sectors, including dal, sugar, edible oil, the inflationary issues that have happened, the fact that the prices are also very good for the farmers already, I would say policy-wise, in case any intervention is required in edible oils, a 5% reduction as per our dynamic duty policy can be one of the policy interventions that government can think of to spur the demand back, especially in the HoReCa sector, where while the overall scenario is affected is 12% due to inflationary tendencies, gas supplies. In the commercial sector of HoReCa, we are finding, being in the market, the impact is much more. So a little tweaking once in a while, because it is in line with our philosophy that higher global prices, you have to tweak the, instead of knee-jerk reaction, you can proactively tweak the duties a little bit. So balancing between supplies, supply disruption, consumption and imports is very necessary. It's something proactively that we can do. जी हाँ, एक बैलेंसिंग एक्ट है जो सरकार को यहाँ पर करनी होगी। एंड आपने जैसे कहा कि ऑफ कोर्स जिस तरह के सिनेरियो और में हम यहाँ पर हैं, इन चीज़ों की शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। एक फाइनल कमेंट लेकिन बिमल जी आपसे, माना जाता है 56% लैंड इरिगेटेड है, तो मानसून शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 44% लेकिन जो लैंड है वो अभी भी काफ़ी बड़ा है, रेन फेड है, दालों पर इसका क्या असर होगा? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमारे यहाँ जो दालों का उत्पादन होता है ज्यादातर रेनफेड एरियाज में होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, हालांकि ये जो एल नीनो की बातें काफी टाइम से आ रही है, इंटरनेशनल ब्यूरोज तो काफी टाइम से कह रहे हैं, और IMD का भी अभी प्रेडिक्शन आ गया कि 92% ऑफ LP होगा। तो हमने सरकार को, जब से हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, हमने सरकार को बफर के लिए काफी स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। और मैं आपको बता दूं, एक अच्छा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। चने का प्रोक्योरमेंट लगभग 15 लाख टन हो चुका है। तुअर लगभग पुराना कैरी ओवर लेके तुअर का भी प्रोक्योरमेंट लगभग 10 लाख टन के आसपास हो चुका है। इसमें पुराना कैरी ओवर भी 6-6.5 लाख टन का है। तो मैं समझता हूँ, और ये सरकार का जो टारगेट है चने में लगभग 27 लाख टन का है। तो हमने सरकार को ये एल नीनो को देखते हुए हमने सरकार को रिकमेंड किया कि कम से कम 45 से 50 लाख टन का आप बफर स्टॉक क्रिएट करें। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से लगभग मुझे लगता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है 30 लाख टन का हो चुका है, और मैं समझता हूँ ये जो प्रोक्योरमेंट है वो जून तक चलेगा। तो ये तो रहा सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। ऐसे इंपोर्ट सारा सब जगह से आपको मालूम है इंपोर्ट फ्रीली अलाउड है, और ओरिजिन से कोई उत्पादन की कमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि सप्लाई में इस साल हमको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एल नीनो का हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी, अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनो हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसका इफेक्ट अगले साल के जो रबी क्रॉप है उस पर आएगा। जब हमारी अक्टूबर नवंबर में चने की जो प्लांटिंग होगी, और जो मसूर की और मटर की जो प्लांटिंग होगी, उस पर जरूर असर पड़ सकता है। तो हमें देखना होगा कि किस तरह है। तो इसीलिए ये एक अच्छा, और लेकिन हमारे यहाँ जो ओरिजिन्स है वहाँ भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लेकिन एल नीनो का इफेक्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अच्छा उत्पादन होता है, हम काफी इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ भी स्ट्रॉन्ग की बात आ रही है। कनाडा से हम काफी इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मोटा इस साल तो मुझे इस ज्यादा चिंताजनक अवस्था नहीं लग रही है, लेकिन अगले साल बिल्कुल थोड़ा ही चिंताजनक बन सकता है। तो क्लियरली वही बात चीनी को लेकर भी है। जी, आई गेट योर पॉइंट।
जैसे आपने कहा चीनी में भी वही इश्यूज हैं कि अगले साल एक इम्पैक्ट रह सकता है, दालों का भी वही हाल है और खाने के तेलों का भी, कि शायद रबी में हम वो ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ देखें इफ इन केस एक्चुअली बारिश यहाँ पर कम होती है। well, इसी के साथ लेकिन फिलहाल इतना ही समय इस कार्यक्रम में है। दीपक जी, बिमल जी, सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री को। हमारे सामने वो समक्ष वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और एल निनो दोनों पर ही ये सारा अपना एनालिसिस देने के लिए। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।